Hello everyone. Dear students, as you know, we are in the second part of the chapter The Alien Planet, the Green Movement's Role by one of the greatest scholar from India, a well-known diplomat and the previous ambassador from India in USA, Nani Palkhiwala. In the previous part, we discussed a lot about the outline of this chapter. Today we have to go through word by word. Let's see right from the beginning here on. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. 24 November 1994. So we can say this lesson, this piece of writing is in the form of article. The issue that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance, reference. जो बातें 24 नवंबर 1994 को नैनी पालकीवाला ने लिखी वो आज भी बड़ी सारगर्भित है। उनका एक बहुत बड़ा आज भी रेलिवेंस दिया जाता है, उसका रेफरेंस दिया जाता है। लेट्स सी, one cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago in 1972. In 1972. Here we can say, right from the beginning of this chapter, Nani Palkhiwala mentioned about the green movement's role. And it was started back in the year 1972 from New Zealand. And it was a small group of people. They started the term green movement's role. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. उसके बाद से इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. We have shifted one hops. One hops means happen to be true. Irrevocably means impossible to change. From the mechanistic view to a holistic and ecological view. Let me tell you, mechanistic भौतिकवादी जो भौतिकवाद के ऊपर अपने आप को ज्यादा समर्पित भाव से देखता है, उस प्रीफिक्स को देखते हुए मनुष्य ने इस मोमेंट के बाद से एक बार फिर से इकोलॉजिकल और होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ देखना शुरू किया. I mean to say, at that time, people were not, concerned about the ecological term or ecological point of view. It is a shift of human perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. The term that was introduced by Copernicus in the 16th century, the earth and the other planets revolved around the sun. That was the revolutionary change. And the same context, the writer Mr. Palkhiwala mentioned here that the attention of the people were also gripped by this movement, green roll movement, in the same context. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. At the very first time in human history, क्या समझा गया कि जो अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. उसकी अपनी मेटाबॉलिक कुछ आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं, और उनको फुलफिल करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देखिए
Earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its metabolic needs and vital process which needs to be respected and preserved. The Earth's vital signs reveal a passage in a declining health. धरती के जो वाइटल एक तरीके से साइन है वो ये बात रिवील करते हैं कि धरती की जो स्वास्थ्य है, इस प्लेनेट का जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है. वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस. एथिकल को हम कहेंगे नैतिक जिम्मेवारियां. टू बी गुड स्टीवर्ड. स्टीवर्ड होता है गार्ड, रक्षक. हमें अपनी नैतिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी एक रक्षक बनकर ऑफ द प्लेनेट, इस प्लेनेट के. एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और हमें एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी बनना होगा ऑफ द लेगेसी ऑफ फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन की वसीयत के रूप में हमें इसको देना होगा. The concept of sustainable development was popularized in the year 1987. One more term I have described again and again in previous part. Once more I would like to tell you. Sustainable development. Such type of development that fulfill the necessity, the requirement of present generation, but we never compromise our future generation. It means I would like to say सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें हम अपने वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी समझ के साथ अच्छे ढंग से कर लें, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज का इतना उपभोग भी ना करें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसका मोहताज बन जाए. आई वुड लाइक टू से दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड. बट remember, we never forget about our upcoming generations. We have never become a very selfish person. We have to see that these natural resources are very much limited. So we must take care of our upcoming generation as well. The concept was sustainable development was popularized in 1987. It was popularized in 1987. ये अवधारणा 1987 में आई कि हमें प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनको अंधाधुंध रूप से उनका उपयोग नहीं करना चाहिए. यदि हम नेचुरल रिसोर्सेज का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे तो उसके लिए आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उसके लिए मोहताज बन जाएंगी. वो उनको नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे क्योंकि लिमिटेड हैं. ये अवधारणा 1987 में आई. कैसे? The World Commission of Environment and Development, in its report, it defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. I mean to say कि डेवलपमेंट जो आवश्यकताओं की पूर्ति करे वर्तमान की बिना कॉम्प्रोमाइज किए एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स विदाउट स्ट्रिपिंग रॉब्ड. स्ट्रिपिंग का मतलब यहां पर हम क्या लगाएंगे? स्ट्रिपिंग हियर मींस रॉब द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसार को रिसोर्सेज का फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, जिसको फ्यूचर जनरेशन को आवश्यकता पड़ेगी. इस प्रकार से इन द zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world most dangerous animal. अगली जो अवधारणा आती है एनवायरमेंट को लेकर के वो क्या है? वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल. लुसाका जाम्बिया. लुसाका जाम्बिया में इन द zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads the world most dangerous animal. Inside the cage there is no animal but a mirror where you can see yourself. This is the thing of awareness among the human people. This is the awareness among the people. I would like to say कि क्या है वहां पर कि in the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage
where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the case there is no animal. लेकिन केस के अंदर जो देखें हम तो वहां पर कोई जानवर है नहीं, बल्कि क्या है, कुछ मिरर्स हैं where you can see yourself. Thanks to the efforts of the number of agencies in different countries, a new awareness has now turned into the most dangerous animal in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system-based domination. ध्यान रखिए इसको. He has raised the wisdom of shifting from a system-based on domination to one based on partnership. Partnership के ऊपर केंद्रित होना चाहिए. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट ने क्या रिवील किया है, कैटलॉग किया है कि 1.4 मिलियन जीवित प्रजातियां हैं जो धरती के ऊपर रहती हैं. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. लेकिन इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, जो अननोन हैं, जिनका कोई कैटलॉग नहीं किया गया है. बायोलॉजिस्ट कहते हैं that about 3 to 100 million other living species still languish को कहेंगे to force to stay somewhere unnamed. उनका अभी भी कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है. कहता है कि शायद बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं अभी भी इस संसार में जिनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है और वो इग्नोमिनस डार्कनेस में रहते हैं. इग्नोमिनस को हम कहेंगे मेकिंग यू फील एम्प्रेस्ड. शर्मिंदगी के लिहाज से हम कह सकते हैं. एक तरीके से लगभग इतनी प्रजातियां अभी भी हैं, लिविंग हैं, जिनका कोई वर्गीकरण ही नहीं किया गया है, ये बायोलॉजिस्ट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस which dealt entralia दूसरे अर्थ में with the question of ecology and environment was the Branded Commission, which had a distinguished Indian as one of its member अलके झा, जिसका distinguished member एक भारतीय अलके झा था. The first Branded report raised the question, are we to leave our successor a scrounged planet of advanced deserts? क्या हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हम उनको भेंट स्वरूप एक बीमार ग्रह देना चाहते हैं जो मरुस्थल में बदला हुआ है. इम्पॉवराइज्ड लैंडस्केप, जिसमें प्राकृतिक नज़ारे परिदृश्य नहीं हैं, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और बीमार जो पर्यावरण है उसको हम भेंट स्वरूप हम अपने आने वाली पीढ़ियों को देना चाहते हैं. मिस्टर लेस्टर ब्राउन in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological system are four. There are four principal biological systems on this planet, and these four biological systems are grassland, cropland, fisheries and forest. और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि चाहे वो फिशरी हो, फिशरीज इन वांट ऑफ मोर प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन की चाहत में लोग ओवर फिशिंग करते हैं हर एक सेकंड के साथ. I would like to give you the data, precise data, and the data that is given in your textbook that was, at the time of 1994. It is not maybe the correct to today's relevance in today's context. At that time, Nani Palkhiwala, Mr. Nani Palkhiwala mentioned that in a second we are cleared almost 2 acre land. 1 एकड़ लैंड को 2 एकड़ लैंड के आसपास की भूमि को, वनों को हम सिर्फ 1 सेकंड के अंदर क्लियर कर रहे हैं. इतना ज्यादा ये जो है नुकसान हो रहा है. देखिए यहां पर क्या है. The Lester R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological systems are 4. कौन कौन से 4 सिस्टम है ये ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको. इनमें है फॉरेस्ट नंबर 1, सेकंड ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड और फिशरीज. ओके,
These are for biological systems. Forest, fisheries, grassland and cropland, and they form the foundation of global economic system. Definitely, in addition to supplying our food, these four systems provide to virtually all the raw materials, virtually potentially कह सकते हैं all the raw material for industry except minerals को छोड़ करके, okay, and petroleum को छोड़ करके, dried synthetics, जो synthetics प्रतिक्रिया process के द्वारा आता है. In large acres of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. Impaired का मतलब damaged. हम ये कह सकते हैं कि संसार के अधिकतर क्षेत्र में मनुष्य दावा करता है कि हम एक अनसस्टेनेबल लेवल तक पहुंच चुके हैं. इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है. किसकी? हम कहेंगे फॉरेस्ट की, ग्रासलैंड की, क्रॉपलैंड की और फिशरीज की. When this happens, fisheries collapse. जब ऐसा होता है तो फिशरी कोलैप्स हो गई, फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वास्टलैंड. जो ग्रासलैंड है वो बंजर भूमि में तब्दील हो रहे हैं, एंड क्रॉपलैंड डिटेरियोरेट, और जो खेती की जो भूमि है उसका ह्रास हो रहा है, उसमें कमी आ रही है. इन ए प्रोटीन कॉन्शियस, ध्यान से देखिए सेंटेंस को, कहता है कि इन ए प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हैंग्री वर्ल्ड, जहां मनुष्य की चाहत क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन गेन करने की है. ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे. हर एक दिन के साथ ओवर फिशिंग, अंधाधुंध मछलियों को पकड़ना, शिकार करना, उनको कैप्चर करना, ये एक सामान्य बात बन गई है. इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर डिमिसिएटेड, डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना. जो सामान्य लोकल जो फॉरेस्ट हैं उनको एक तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. टू प्रोक्योर फायरवुड, ताकि फायरवुड प्राप्त किया जा सके फॉर कुकिंग, भोजन बनाने के लिए. यहां तक ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो रूरल एरियाज हैं, इट इज नॉट द मैटर ऑफ एनी स्पेसिफिक कंट्री, इट इज नॉट द मैटर ऑफ एनी स्पेसिफिक एरिया, इट इज द ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑथर कि बहुत से क्षेत्रों में जो रूरल एरिया है उसमें जो कुकिंग के लिए फायरवुड का प्रयोग किया जाता है. इन सम प्लेसेस firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it. बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कई जगह तो इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि जहां पर पोर्ट के अंदर क्या पक रहा है उसकी कीमत कम है, इसकी बजाय जो ईंधन जलाया जा रहा है, जो ईंधन जलाया जा रहा है वो ज्यादा कॉस्टली है, इसकी बजाय कि उस पोर्ट के अंदर क्या पक रहा है. Since the tropical forest is, जहां तक उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं? उष्णकटिबंधीय वन. In the words of Dr. Mayers, the powerhouse of evolution, इनको powerhouse of evolution कहा गया है. Evolution. Several species life face extinction as a result of destruction. इन वनों की कटाई की वजह से बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं. बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो इसकी वजह से, वनों की कटाई की वजह से समाप्त हो चुकी हैं, और बहुत सी ऐसी स्पेसीज भी हैं, जातियां भी हैं जो कगार पर हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं. देखिए, इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड. ये बिल्कुल सही कहा जाता है कि मनुष्य से पहले फॉरेस्ट की उत्पत्ति हुई. मनुष्य के संसार में आने से पहले फॉरेस्ट अस्तित्व में आई. डिजर्ट्स फॉलो, उसके पश्चात मरुस्थल आई. द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग. इरोडिंग होता है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग, इरोडिंग ग्रेजुअली डिस्ट्रॉइंग एट द रेट ऑफ 40 और 50 मिलियन एकड़ ईयर. हम क्या कर रहे हैं इसमें? ध्यान से देखिए, जो प्राचीन पैतृक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो पुराने समय से चलते आ रहे उष्णकटिबंधीय वन है, इज नाउ इरोडिंग, वो ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो रहे हैं एट द रेट ऑफ, किस रेट से हो रहे हैं? 40 to 50 मिलियन एकड़ ईयर. एक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़. एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, और जो बढ़ता हुआ डंग का प्रयोग है, गोबर का प्रयोग है फॉर बर्निंग
आग जलाने के लिए deprives the soil of the important natural fertilizer। इसकी वजह से जो नेचुरल फर्टिलाइजर है उसमें भी कमी आ रही है। The World Bank estimates that a five-fold increase in rate of the forest planting rates। वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट क्या करता है कि 5-fold इंक्रीज चाहिए, फॉरेस्ट प्लांटेशन लगानी चाहिए जितना हम जो इस समय कटाई कर रहे हैं, जो उपयोग में ले रहे हैं, टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000। जब ये लिखा गया था उस समय की बात है कि हमें लगभग एक तरीके से 5 गुना ज्यादा वृक्ष प्लांट करने चाहिए जितना कि इसमें बताया गया है। अब यहां पर आर्टिकल 40A की बात की गई है, रिमेनिंग पार्ट हम करेंगे। लेट मी रिवाइज यू दिस पार्ट फर्स्ट। हमने इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा है, ग्रीन मूवमेंट्स रोल के बारे में पढ़ा। आज जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया इसमें we read all about the green movement role that was started in the year 1972 by a small group of people and it was started from New Zealand back in the year 1972। ये इसकी वजह से अब तक जो लोगों का मैकेनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू था वो इकोलॉजिकल में चेंज हुआ और उन्होंने पर्यावरण की तरफ देखना शुरू किया। इसके पश्चात जो अवधारणा आई वो आपको ध्यान रखनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिरकार क्या होता है। इस प्रकार का डेवलपमेंट दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड बट नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर की जनरेशन को भी वो ना करे, उसको भी क्षति ना पहुंचाए। उसके बाद हमने आज तीसरी बात पढ़ी कि वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है, हु इज द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल। इसके लिए एक अच्छा एग्जांपल, एक इंस्पायरिंग एग्जांपल प्रस्तुत किया लोसाका जाम्बिया जू में, जहां पर एक नोटिस लगा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द जू दैट हियर is the world most dangerous animal and everyone is very curious to know the most dangerous animal of the planet or whenever anybody enters there is nothing except the few mirrors। तो आपको क्या दिखाई देगा उसमें, शीशे में आप अपना चेहरा देख पाएंगे, अर्थात मनुष्य जो है सबसे बड़ा डेंजरस एनिमल है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात हमने पढ़ी कि 4 बायोलॉजिकल सिस्टम्स कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है और फिशरीज है, और इनका ही सबसे ज्यादा इनको ही क्षति पहुंचाई जा रही है जिसकी वजह से असंतुलन पैदा हुआ है। ओवर फिशिंग हो गई है और ओवर फिशिंग के लिए मिस्टर नानी पालकीवाला ने क्या कहा है, उसने कहा है कि वी आर वेरी मच कॉन्शियस ऑफ गेनिंग मोर एंड मोर प्रोटीन। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की चाहत में हम ओवर फिशिंग कर रहे हैं जिससे ये बैलेंस बिगड़ा है। जो क्रॉपलैंड है वो वास्टलैंड में बदल रही है, ग्रासलैंड है उसका भी जो जगह है वो तब्दील हो रही है वेस्टलैंड में। फॉरेस्ट जो है वो बड़ी हाई स्पीड के साथ लगातार काटे जा रहे हैं। ओवर पॉपुलेशन इसका एक मेजर कारण है, एक मेजर कारण इसका ओवर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, जिसको लेखक बाद में बताता है। इसके पश्चात लेखक लास्ट में अभी मैंने पढ़ा कि 48A का हवाला देता है आर्टिकल का और कहता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है कि हम प्रिजर्व करके रखें हमारे एनवायरनमेंट को, प्रकृति को, लेकिन लेखक बड़े लेमेंट करता है इस बात के ऊपर, दुख व्यतीत करता है, दुख व्यक्त करता है आई वुड लाइक टू से, और कहता है कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड इन इंडिया। सो दिस part I would like to say that you have to cover the almost half part of this chapter. Remaining part we will certainly do in the next class. Thank you. Have a nice day.